Hey everyone, welcome back to the channel. So today's topic will be about B trees. So what I will be covering is what actually the B tree is, where do we actually use these B trees, and the advanced version of B tree, which is a B plus tree, how it is different from B tree, and what are the advantages of this B plus tree. We'll also a little bit cover about how actually databases store these B tree nodes into the disk. So I really hope that you actually like this video. And if you have any questions about the video about B3, please definitely write them in the comment section. I will really try to answer all of the questions to best of my abilities. So let's start. So let's simply start with understanding of a B3 with its definition. So it is simply a data structure used by databases for the purpose of indexing, ठीक है, which at the end results in very fast queries from the data, ठीक है. So simply एक example लेते हैं, हमारे पास एक client है, it wants to access a particular row in a database. तो मान लो हमारे पास कोई ID equal to 10 है, it's a where clause on that particular ID. मान लो ID equal to 10, ठीक है. नाउ पहले क्या होगा, ये क्लाइंट सिंपली अब क्वेरी करेगा डेटाबेस को, बट डेटाबेस क्या करेगा, इट विल फर्स्ट चेक इनटू दिस इंडेक्स कि डज देयर एग्जिस्ट सम आईडी इक्वल टू 10. नाउ इफ इट डज एग्जिस्ट, सो ये रिटर्न हमें एक एड्रेस देगा ऑफ दैट पर्टिकुलर रो. नाउ द डिस्क में मल्टीपल पेज होते हैं, उस पेजेस में मल्टीपल हमारे पास रो होते हैं, सो इट विल गिव अस एड्रेस टू दैट पर्टिकुलर रो, ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपन कि ये सिंपल पेज जो है मेमोरी में लोड किया जाएगा, एंड देन जो डेटाबेस है दैट विल फिल्टर आउट द रो वेयर आईडी इज इक्वल टू 10 एंड रिटर्न इट बैक टू द यूजर, ठीक है. बट अगर इंडेक्स नहीं होता तो क्या होता, सो यहां लिखा हुआ है क्वेरी विदाउट एन इंडेक्स. सो उस टाइम पे क्या होगा, सो इट विल रीड ऑल ऑफ द डेटा फ्रॉम द डिस्क इवन अगर इसको खाली एक रो की जरूरत है, ठीक है. तो बिकॉज एट द एंड द टेबल जो हमारे पास होता है एक पर्टिकुलर टेबल पे like there could be thousands of hundreds of thousands of rows, pages, sorry, there could be thousands of pages in the disk. So if we do not have an index, इसको वो सारे के सारे pages जो है maybe in a groups load करने पड़ेंगे, उनमें सर्च करना पड़ेगा कि that ID where this ID equal to 10 matches, ठीक है, and then return that to the user. So there's a chance even to get one single row, it has to read all of those pages in the disk, which could go in thousands or even more, ठीक है. एंड नाउ यूजिंग एन इंडेक्स वी कैन डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर सिंगल वन पेज एंड उसको रिटर्न कर जो रो है उसको रिटर्न कर देंगे यूजर को. सो नाउ इट इज ट्रेमेंडसली फास्ट, ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइक बी ट्रीज. इट इज काइंड ऑफ मे बी नॉट द टाइप बट इनिशियली जो स्टार्टिंग में हमारा वर्जन था दैट वाज बी ट्री, स्टार्टिंग में जो आया था. उसके बाद इसका एक एडवांस्ड वर्जन जो है काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज अ बी प्लस ट्री which is I think in all the ways better than a B plus tree. So अभी थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करते हैं what a B tree is, then उसके बाद we'll move to a B plus tree. I think there's already a website that will actually shows the animation that how it actually works. So now I will use this website to show you like when we insert into the B tree तो what actually happens, या जब हम किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो क्या होता है. तो मगर मेरा स्टिल मेजर फोकस ये नहीं रहेगा कि I will tell you the implementation कि जब इंसर्ट करते हैं तो ये चीजें होती है. My major focus will be कि how actually the databases use it or how they store the B tree into the disk, and when we read something or find something into the B tree, how actually it works, ठीक है. तो let's start by maybe creating the B tree. तो मान लेते हैं हमने एक सिंपल वैल्यू add 1 करा. अब एक और चीज है, ये यहाँ एक डिग्री होता है, ठीक है. अब बी ट्री और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है. बाइनरी ट्री नॉर्मली क्या होता है, उसमें एक वैल्यू होता है, ठीक है. वन नोड हैज वन वैल्यू एंड देयर आर टू पॉइंटर्स लेफ्ट एंड राइट. तो अगर वैल्यू एक पर्टिकुलर नोड मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं उससे उस नोड के वैल्यू से छोटा है तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे अगर बड़ा वैल्यू, ठीक है. बट इन बी प्लस ट्री और बी ट्री और बी प्लस ट्री जो डिग्री है दैट कैन बी मोर देन 1 या मोर देन 2, ठीक है. अब अगर डिग्री 3 है इसका मतलब है एक पर्टिकुलर जो नोड है उसमें हम 2 वैल्यूज 3 माइनस 1 डिग्री माइनस 1 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. तो हमने 1 स्टोर किया, सिंपली एक इसने नोड क्रिएट किया एंड स्टोर द 1 वैल्यू इनटू इट. अब अगर वैल्यू 2 स्टोर इंसर्ट करता है, सो अभी इस नोड में इसके पास स्पेस बचा हुआ था तो सिंपली इसी ने इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया. नाउ अगर हम 3 वैल्यू स्टोर करेंगे, अब वैल्यू तो हम जितना स्टोर कर सकते हैं 2 ही वैल्यू पर नोड में स्टोर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इट इज गोना डू इज स्प्लिट दिस काइंड ऑफ नोड एंड स्टोर दिस वैल्यू. लेट्स सी क्या करता है ये, ठीक है. तो अभी इसने क्या करा, इसने इस वैल्यू को जो है स्प्लिट करा, इस नोड को स्प्लिट करा एंड क्रिएटेड 2 अदर नोड्स इन द लेफ्ट एंड द राइट, ठीक है. नाउ आई थिंक इट इज बेटर इफ आई टेल यू हाउ एक्चुअली डेटाबेसेस डज इट इंटरनली. तो ये देखते हैं, ठीक है. सो लेट मी एक्चुअली शो इट हियर. सो इनिशियली हमारा क्या हुआ, हमारे पास एक वैल्यू था 001, ठीक है. दैट इज सिंपल. सो व्हाट एक्चुअली एट दिस टाइम डेटाबेस डज, इट क्रिएट्स अ पेज
फॉर दिस वन नोड, एक पूरा का पूरा पेज एलोकेट हो जाता है एक पर्टिकुलर नोड के लिए इन द डिस्क, ठीक है। नाउ सेकंड टाइम व्हेन एक्चुअली अभी क्या हुआ कि हमने इंसर्ट किया वैल्यू 2, सो सिंपली इसी पेज के अंदर एक दूसरा वैल्यू आ गया 002, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ, एक वैल्यू हमने इंसर्ट करा 003 या 3 सिंपल मान लो, ठीक है। सो अब इस टाइम पे क्या होगा, इट एक्चुअली ब्रेक्स, अभी हमने देखा कि जो 002 वाला या जो ये पेज था ये स्प्लिट हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस इस पेज को तो इसमें खाली अभी 002 स्टोर करेगा, दो नए पेजेस क्रिएट कर देगा, जिसमें एक वाले में 001 रखेगा और दूसरे 003, और ये इस यहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हर किसी नोड के लिए एक पेज अलोकेट हो जाएगा, इसके लिए भी एक पूरा पेज अलोकेट हो जाता है, ठीक है, इसके लिए भी पूरा पेज अलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसी के लिए, क्योंकि एक पेज जो है वो मे बी 10 केबाइट्स या केबाइट्स में होता है, तो डिग्री जो होती है, अभी हम यहाँ एग्जाम्पल पे डिग्री 3 कर रहे हैं, बट नॉर्मली इट इज इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है, बहुत काइंड ऑफ लार्ज काइंड ऑफ नोड होता है, ठीक है, बिकॉज अ फुल पेज इज अलोकेटेड टू इट, दिस इज हाउ इट इज। अब नॉर्मली बी ट्रीज में बी प्लस टी की बात नहीं चल रही, बी ट्री में खाली वैल्यू तो होता नहीं है, सॉरी की नहीं होता, दिस इज जस्ट मान लीजिए प्राइमरी की हम उसकी बात कर रहे हैं, सो देर इज नॉट जस्ट द की, एक वैल्यू भी स्टोर होगा विच एक्चुअली पॉइंट्स टू सम काइंड ऑफ वैल्यू इन द डिस्क, ठीक है, कोई रो को, क्योंकि एट द एंड दिस इज पॉइंटिंग टू सम प्राइमरी की, तो हमारे पास कोई भी टेबल होगा जिसका 0.02 है वो एक प्राइमरी की है ना, इसका जो वैल्यू है वो उस रो को पॉइंट कर रहा है डिस्क में, मान लो ये पेज है, वहां एक रो है, वो उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली डेटाबेस डज इट। अगेन ये अगर हम मान लो इस पेज को अगेन स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, ये पेज हम स्प्लिट हो रहा है, मान लो कुछ वैल्यूज इसमें ज्यादा आ गए, 0.11 खाली 1 नहीं, अभी 2-3 वैल्यूज आ गए, इसको अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा, सो अगेन इट विल क्रिएट न्यू पेजेस फॉर दिस एंड उनमें वैल्यू स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, ये स्प्लिट कर देगा एक पेज को। सो नॉर्मली दिस इज हाउ डेटाबेस स्टोर्स इट, फॉर एवरी नोड हमारे पास एक पूरा का पूरा पेज एलोकेट हो जाता है, और जब स्प्लिट हो जाता है एट दैट टाइम वी हैव टू एक्चुअली क्रिएट न्यू पेजेस एंड उनके अंदर जो डेटा हो उनको स्टोर करना पड़ता है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट सेल्फ बैलेंसिंग दैट दिस बी ट्री डज, उसका भी एक कॉस्ट है, ठीक है, डेटाबेस जो डेटाबेस को बेयर करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज व्हेन इट एक्चुअली स्प्लिट्स द पेज, डेटाबेस को पेजेस को रीराइट या नए पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके, लेट्स once more see what actually happens inside the database when we add this 3 value, ठीक है। तो एक पेज हमारे पास था जिसमें वैल्यू था 0 या 1 एंड 2, ठीक है, अब वैल्यू आ गया 3, सो व्हाट इट डज, होता क्या है, एक तो इस पेज में इसको रीराइट करना पड़ा और इसमें खाली हमें 2 वैल्यू रखना पड़ा, राइट, पूरे पेज को रीराइट करना पड़ा, और दो नए पेजेस ऐड हुए जिसमें 1 और 3 हो गया, हमने स्टोर करा, ठीक है। सो व्हाट वी डिड, क्रिएट 2 न्यू पेजेस एंड इसको पूरा का पूरा रीराइट करना पड़ा। So this is what actually happened in the database. So now I will pause this video and जब मैं पूरा ये B-tree क्रिएट कर दूंगा, मे बी 5-6 नोड्स में ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं वापस जो है इसको स्टार्ट कर दूंगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमें इसमें कोई वैल्यू फाइंड करना है तो B-tree क्या करता है। तो सिंपली मैंने यहाँ 5 लिख दिया एंड आई विल से फाइंड। सो इसने क्या पहले करा, पहले 4 में गया, फिगर आउट की इस पहले नोड में है क्या वैल्यू, वहां था नहीं, सो इट एक्चुअली सीज ओके मेरे को राइट जाना, बिकॉज ऑल द वैल्यूज जो 4 से ज्यादा है वो राइट में, इट गोज टू 10 में देखा कि इस नोड में है क्या, तो अगेन इसमें नहीं था, देन इट हैज टू इट फिगर्स आउट कि जो 5 वैल्यू है इसके लेफ्ट में होगा, देन इट गोज इन द लेफ्ट नोड एंड देन ये इसमें फाइंड कर दिया 5 नोड है, ठीक है। एंड इस 5 नोड में अभी क्या होगा, इसमें पॉइंटर होगा, यहां तो नहीं दिखा रहे बट डेटाबेसेस में वो पॉइंटर होता है टू द रो जो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास B-tree है। नाउ प्रॉब्लम क्या है B-tree में, ठीक है, तो मान लेते हैं हमें एक रेंज क्वेरी करनी है, ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है, हमने फाइंड किया लॉग ऑफ एन या जो भी हमारा टाइम इसमें लग जा रहा है, कंप्लेक्सिटी हमारे मान लो यही 5 हमें ढूंढना था, बट अगर हमें खाली 5 नहीं ढूंढना है, 5 के जो भी लार्ज वैल्यूज है उनको ढूंढना है, ठीक है, 5 और 20 चाहिए, मान लो सारे के जो ग्रेटर देन, हमारी ये क्वेरी है वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जो भी है, तो ये क्या करेगा, इट हैज टू डू इट 1 by 1, इसको पहले 5 निकालना पड़ेगा, उसके बाद 20 फाइंड करना पड़ेगा टू गेट ऑल द वैल्यूज, ठीक है। मान लो अभी तो ये सिंपल हमारे पास 2 वैल्यूज है, हमें हंड्रेड ऑफ वैल्यूज ढूंढने पड़े, मान लो सारे बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें चाहिए, इवन इन दिस केस मेरे को 4 बार सर्च करना पड़ेगा, तो मेरे को पहले 1 फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद 2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जितने भी 3 जो भी है सारे वैल्यूज मेरे को फाइंड करने पड़ेंगे 1 by 1, देन मेरे को उन सभी का एक एड्रेस मिलेगा, देन आई विल गो इनटू द डिस्क टू जो मेरे को सारे फैच करने पड़ेंगे। सो अगेन आई विल लिटिल बिट एक्सप्लेन इट बाय द डायग्राम। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या है B-tree में।
सो अगेन इफ यू हैव टू, मान लो सिंपल आपको एक वैल्यू ढूंढना है, 1 ढूंढना है, तो सिंपली यहाँ क्या करेगा, एक फाइंड 1 करेगा, जो मतलब फर्स्ट विल चेक इन द 4 नोड, देन लेफ्ट में जाएगा, अगेन द लेफ्ट में जाएगा, इसको 1 मिल जाएगा, दैट इज फाइन. बट प्रॉब्लम इज व्हेन वी हैव टू सर्च समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इस केस में इसको 1 by 1 सभी को ढूंढना पड़ेगा. सो फर्स्ट इट हैज टू रन द क्वेरी फॉर 1, देन 2, देन 3 समथिंग, देन 4, देन 5, अंटिल जो भी वैल्यूज 20 हमारे पास आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां हमारे पास 3 4 7 वैल्यूज है टोटल में, तो 7 टाइम्स इसको इस पूरे बी ट्री में सर्च करना पड़ेगा. ठीक है, एंड देन उसके बाद इसको मे बी वही 7 पॉइंटर्स मिलेंगे, देन इट विल गो वंस इन द डिस्क एंड उन सभी पॉइंटर्स के पेजेस जितने भी उनको लोड करेगा और रिटर्न कर देगा यूजर. बट द प्रॉब्लम इज इट हैज टू डू इट 7 टाइम्स. अभी तो हमारे पास सिर्फ 7 वैल्यूज है. इफ वी हैव अ लार्जर डेटाबेस विच नॉर्मली वी हैव, इसमें मिलियंस ऑफ हमारे पास रोज होंगे, उसमें एक रेंज क्वेरी करना कुड लीड टू थाउजेंड्स ऑफ काइंड ऑफ वैल्यूज. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज. उस केस में बी ट्री विल मतलब बी वेरी स्लो. ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड लाइक द प्रॉब्लम इज हियर द रेंज क्वेरीज इज वेरी स्लो. लाइक देयर इज वन अनदर प्रॉब्लम, बट आई विल फर्स्ट गो इनटू बी प्लस ट्री, उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कैसे क्या चलता है, उसके बाद दोनों प्रॉब्लम्स पे आएंगे. वन इज रेंज क्वेरी, अनदर इज समथिंग एल्स. लेट्स फिगर दिस. सो नाउ लेट्स गो इनटू बी प्लस ट्री. Now let's understand what actually the B plus tree is. So मैंने already इसको build कर दिया है, so that we don't have to kind of do it again. Now what is in the B tree? Let's see. ठीक है, तो अभी what you can see in the top is we have the value 3. ठीक है, मैंने already ये sketch में draw कर दिया पूरा, so I don't have to draw this again. Now left side में we have 2, that is like normal what we should have. उसके बाद right side में हमारे पास values है जो 3 से greater है. Then यहाँ left side में value something that is less than 2, 1 है. बट नाउ यू सी इज यहां जो वैल्यू है वो 2 है, बट वी ऑलरेडी हैड द 2 इन द टॉप. ठीक है, सो यू माइट सी देयर सम डुप्लीकेसी. बट द आइडिया, व्हाट द आइडिया इन द बी प्लस ट्री इज दैट द पॉइंटर्स ओनली स्टोर्ड इन द लीफ नोड्स. जो भी पॉइंटर्स हमारे पास है वो लीफ नोड में खाली स्टोर होते हैं. ठीक है, दैट इज वन थिंग. अनदर इज जो भी लीफ नोड में वैल्यूज है, ये 1 है, इट्स एक्चुअली पॉइंटिंग इट्स नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज इससे जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है, यहां 2 है. Again, 2 is pointing to the next greater, which is here 3, and 3 is pointing to 5. 5 will point to this node, that is 6. ठीक है, which you can actually see also in this one. तो दो चीजें यहां डिफरेंट है. एक तो लीफ नोड नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, और जो वैल्यूज यहां जो है दैट डजंट हैव अ पॉइंटर. मतलब जो 2 यहां, मैं एक मिनट यहां कर देता हूं, तो मगर जो यहां वैल्यू मेरे पास 2 है, इट डजंट हैव अ पॉइंटर टू द मेमोरी. इट ओनली हैज राइट नाउ दिस नोड विल गिव मी द डायरेक्शन कि मेरे को जो अगर मैं फाइंड कर रहा हूं 2, मेरे को 2 कहां मिलेगा या मेरे को 1 कहां मिलेगा. इट विल टेल मी टू गो टू द लेफ्ट और द राइट. तो मान लो यहां फाइंड कर रहा है वैल्यू मे बी 5 ढूंढता है. ठीक है, सो व्हाट इट इज गोना डू, यहां फाइंड इसको मिल गया, बट वहां ये नहीं कर रहा. इट इज ओनली टेलिंग इट आपको जाना कहां है टू फाइंड द वैल्यू 5, बिकॉज एट द एंड वी नीड अ पॉइंटर एंड दैट इज ओनली स्टोर्ड इन द लीफ नोड्स. ठीक है, सो 2 थिंग्स वी सी, लीव्स आर पॉइंटिंग टू ईच अदर, एंड जो पॉइंटर्स एक्चुअल जो डेटाबेस में पॉइंट कर रहे हैं दैट आर ओनली इन द लीफ नोड्स. नाउ द पॉइंट इज व्हाई. फर्स्ट थिंग जो हमारा B3 में that was a disadvantage was it wasn't able to efficiently get the range query, ठीक है, values in the range query. But now in B plus tree, let's say I want to get the values greater than equal to 1. So मेरे को अभी करना क्या होगा, I just have to find the value 1. मैंने वो ढूंढा which is here. Now यहां मैंने ढूंढा 1. All the values greater than that is just having a pointer. मेरे को 1 मिला, मैं simply मेरे पास पॉइंटर है नेक्स्ट वैल्यू के लिए, which is 2. अगेन इन 2 मेरे पास नेक्स्ट पॉइंटर का वैल्यू है 3 का, 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 6 का. सो नाउ आई जस्ट ओनली हैव टू सर्च 1, एंड जो भी वैल्यूज है उसके बाद मेरे को सारे के सारे मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी बिग एडवांटेज ऑफ बी प्लस ट्री कि इट विल लेट अस क्वेरी रेंज क्वेरीज वेरी फास्ट. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड एडवांटेज. एज वी कैन सी, जो हमारे पास वैल्यूज यहां टॉप पे है, 0 या 3 है, 2 है, 5 6, टॉप लेवल के, विदाउट लीफ के बगैर ऊपर वाले, इनमें हमारे पास पॉइंटर्स नहीं है. सो इनका जो टोटल साइज है दैट एक्चुअली इज वेरी लेस देन कंपेयर टू दिस. पूरा जो लीफ में वैल्यूज है उसके कंपेयर में इनके जो साइज है वो बहुत स्मॉल है. ठीक है, सो व्हाट इज एडवांटेज हियर इज इफ वी हैव टू एक्चुअली लोड the index in the memory, now we only need
लीफ नोड के बगैर जितने भी हमारे टॉप वैल्यूज उनको ही हम खाली लोड करते हैं, जो 3 वैल्यू यहाँ है, 2 है और 5 एंड 6, राइट। लीफ नोड, जो भी लीफ नोड है हम उनको लोड नहीं करेंगे, हम खाली जो टॉप लेवल वाले हैं उनको ही मेमोरी में लोड करेंगे, ठीक है, विच एक्चुअली सेव्स अस अ लॉट ऑफ स्पेस एंड वी नाउ हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन कि हमें अगर 2 वैल्यू को ढूंढना है, हमें कहां कहां जाना है, ठीक है। बट अगर हम इसी को बी ट्री में देखेंगे, उसमें वी हैव टू लोड द फुल इंडेक्स इनटू द मेमोरी, दैट कुड बी वेरी हार्ड बिकॉज अगर हमें पूरा का पूरा बी ट्री लोड करना है डेटाबेस में, उसमें खाली की अभी हमें स्टोर नहीं करना है, वी हैव टू ऑल्सो स्टोर द वैल्यू इन द मेमोरी, ठीक है, विच कैन एक्चुअली ग्रो वेरी लार्ज, ठीक है। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ बी प्लस ट्री, दैट वी ओनली हैव टू स्टोर these pointers which are kind of a direction pointers which tells us where you have to go, but the actual meat, the data is in the leaf, ठीक है, जो हम डिस्क में भी रख सकते हैं। Now, now I think that you understand two big advantages of B plus tree or B tree, and normally the databases they actually use kind of B plus tree, but I think MongoDB still uses B tree, right? But I think a majority of the databases today uses B plus tree because it's very advantageous over B tree.